So here, question number 8. You are given, if the angle between two lines is pi by 4 and the slope of one line is 1 over 2. So we have taken slope of first line as m1 is equal to 1 over 2. Let the slope of other line is m2. We have to find the slope of other line. So which formula you know? There is only one formula. Tangent of theta is equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 into m2 whole mod. Is the mod value. Tangent of theta, here theta is pi by 4. So tangent pi by 4 is 1 is equal to m2 minus value of m1, that is half, over 1 plus m2 over 2 after calculations. So whenever you will solve numerator and denominator, you will get these two values. 2 will be cancelled out. So value of 1 is equal to 2m2 minus 1 over 2 plus m2. And in the end, we will get 2m2 minus 1 over 2 plus m2 is equal to plus minus 1. Why it is plus minus? Due to mod value. Clear? Now we have to solve these two equations. First, we will take sign of positive and then negative sign. Solve these values. 2m2 minus 1 over 2 plus m2 is equal to plus 1, और second value आपके पास क्या आ जाएगी? 2m2 minus 1 over 2 plus m2 is equal to minus 1. एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली और एक बार नेगेटिव वैल्यू ली. इसको जब आपने सॉल्व किया 2m2 minus 1 is equal to ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 plus m2, 2m2 minus m2 is equal to 2 here plus 1 3. So value of m2 is 3. It is the first value. और इसको सॉल्व करोगे तो 2m2 minus 1 is equal to minus 1 into plus m2. 2m2 minus 1 is equal to minus 2 minus m2. So it will be 3m2 is equal to minus 2 plus 1, it will become minus 1. So value of m2 minus 1 over 3. It is the second value. Here, so we have got two values of m. So what is that? Slope of second line. So your answer is या तो वो वैल्यू 3 होगी और -1/3. Now question number 9. Line through the points. You are given 2 points. अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप. 2 पॉइंट है. स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है? -2 6 and second point is 4 8. क्लियर? आपके पास 2 पॉइंट्स हैं. ये 2 पॉइंट्स है. लेट इट बी P. इसकी वैल्यू था -2 6 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज 4 8. जब आपने इनको मिलाया और दूसरे 2 पॉइंट गिवन है, जब आप उनको मिलाते हैं तो दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. क्लियर? इट मींस यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ बोथ ऑफ दीस लाइंस और उनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए? -1. क्लियर? तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? y2 minus y1. So it will be 8 minus 6 over 4 minus -2. So it will be 2 over, what should be written? 6. That is 1/3. And let it be m1. Clear? Now slope of line through
कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है आपको अगले? हाँ जी बोलिए फटाफट। 8, 12 एंड 8, 12 एंड x24। क्लियर? इनमें से कोई भी हो सकता है, सपोज इट इज 8, 12 एंड इट इज x24। तो इसका स्लोप आप फाइंड आउट करोगे, m2 will be equal to what should be written, 24 minus 12 over x minus 8. So it will be 12 over x minus 8. Now as the two lines are perpendicular, therefore m1 into m2 will be -1. ये हम कर चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. So here m1 into m2 is equal to -1 implies 12, m1 की वैल्यू 1/3 into 12 over x minus 8 is equal to -1. So 4 is equal to minus x plus 8. X will be 8 minus 4. So value of x is 4. It was the question. Question number 10. You are given 3 points fully here. अगर आपके पास ये 3 points हैं, P, Q, R, clear? You have done the condition. Slope of PQ should be equal to slope of QR. Clear? और आप slope of QR, PR भी ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन से देखिए H minus X1 कौन से पॉइंट्स हैं? H minus X1. इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ लिया पहले, so slope of PQ is equal to, अब मैंने आपको फॉर्मूला तो आपने किया ना, m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, we can write it as y1 minus y2 over x1 minus x2 लिख सकते हैं ना, yes or no? यहाँ नेगेटिव नेगेटिव दोनों में से किसी को भी हम फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं। आपने आंसर से रिलेट करते हुए चलना है h minus x, ठीक है, और यहाँ पे k minus y। इसका मतलब ये जो पॉइंट है h के, इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर कीजिए। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, यहाँ से k minus y1 over h minus x1, clear? Then slope of QR में यहाँ से y2 minus y1, अब यहाँ पे देखिए कौन सा है, y2 minus y1 है, y2 minus y1 over x2 minus x1, क्लियर? अगर आप इसको y1 minus k की फॉर्म में भी रखते हो ना, तब भी ओके है, बाद में माइनस का जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। सो दोनों के स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, as points are collinear, which implies, अब इसके स्लोप को अगर हम m1 लेते हैं और इसके स्लोप को m2 लेते हैं तो क्या होगा, m1 will be equal to m2, m1 will be equal to m2. After substituting the values of m1 and m2, you will get this equation. Now related with the proof, क्या प्रूफ करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। So here k minus y1 into x2 minus x1 is equal to h minus x1 into y2 minus y1. Clear? In the proof ये वाली साइड किस तरफ है, इधर, तो आपको इधर लिखनी पड़ेगी h minus x1 into y2 minus y1 is equal to k minus y1 into x2 minus x1. Clear? Slope of
line M1. Its value is 2 minus under root 3. Slope of second line M2 is equal to 2 plus under root 3. ये वैल्यूज है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बिटवीन द टू लाइंस। So you know the formula. Tangent of theta is equal to M2 minus M1 over 1 plus, जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज। तो ये एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है, क्लियर? Substitute the values of M2 and M1. Tangent theta is equal to 2 minus under root 3 minus 2, साइन चेंज हो जाएंगे, minus under root 3 divided by 1 plus 2 minus under root 3 into 2 plus under root 3 mod of that. Find out this value. ये कट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही है। अंडर रूट 3 कट हो जाएंगे। इज इट राइट? टू एंड्स, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन है, इट विल रिमेन एज। तो कितनी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे? 2 अंडर रूट 3 विद नेगेटिव साइन, क्लियर? और डिनोमिनेटर में हियर 1, जब आप इनको सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3, क्लियर? तो कितनी वैल्यू आ गई? अगेन मॉड ऑफ दैट। So tangent of theta is equal to minus 2 under root 3 over 2. It is under root 3. Mod value है, so we have taken it. Tangent theta is under root 3, which implies theta is equal to 60 degree. Therefore, other angles. दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं? 180 में से माइनस करके 180 माइनस 60, सो इट इज 120 डिग्री। तो आंसर में क्या आएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो क्या क्या होंगे? 60 डिग्री एंड 120। वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, अदर विल बी एक्यूट। क्या करना पड़ेगा? एंगल बी फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ ए बी, उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी। AB का स्लोप आपके पास M1 हो जाएगा, इसका स्लोप आपके पास M2 हो जाएगा, और उसके बाद इनके बीच का एंगल टेंजेंट भी है। फॉर्मूला क्या लगा दोगे? टेंजेंट ऑफ B इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 मॉड, यू विल गेट एंगल। लेकिन यहाँ कौन सा एंगल है? कोई भी ले सकते हैं ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज, ठीक है। सिमिलर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. You are given 4 points A, B, C, D are the vertices of a quadrilateral. आपने 9th क्लास में थ्योरम करी होगी। अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, नॉट स्पेशल टाइप ऑफ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C, D, अगर इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, which figure is formed? Line joining the mid points of sides of a quadrilateral is a parallelogram. ये वो ये 9th क्लास में भूल गए सब कुछ, ठीक है। ये एक थ्योरम है, लेकिन उसको यूज नहीं करना आपने। आपको A के वर्टिसेस गिवन है, B के गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ AB, निकाल सकते हो। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BC, Q, R एंड S, सबके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर दोगे, और उसके बाद स्लोप ऑफ PS will be equal to slope of QR and slope of SR will be equal to slope of PQ. It means PQRS is a parallelogram. Clear? दूसरा भी क्या है? अगर स्लोप नहीं लेना तो distance, opposite sides will be equal, both the pairs, ये इसके, then it will be a parallelogram. Okay? X-axis. Okay, so first is equation of
x-axis is y is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. ये सबको पता है. Any line parallel to x-axis. Equation of line parallel to x-axis. क्या इक्वेशन लिखे? y is equal to k. K is any constant, any real number. Where k is any real number. Clear? जब आप इसको प्लॉट करोगे, पैरेलल टू x-axis है, ये x-axis है, ये y-axis. अगर y की कोई फिक्स्ड वैल्यू ले लो आप 5, y की वैल्यू 5 ही रहेगी, x की जो मर्जी हो. 0 5 यहाँ हो जाएगा, 1 5 यहाँ हो जाएगा. जब आप इनकी लाइन बनाओगे इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x-axis. क्लियर? अगर k पॉजिटिव है तो ये x-axis से ऊपर होगी, अगर नेगेटिव है तो नीचे होगी. क्लियर? उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y-axis. क्या लिखते हैं उसको? अगर y-axis के पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है, सो इट विल बी x की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, लेट इट बी x इज इक्वल टू k. k क्या है यहाँ पे? एनी रियल नंबर, कांस्टेंट है. अगर k पॉजिटिव है तो कौन सी साइड होगी? राइट साइड. अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड. क्लियर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to x-axis passing through the point 2 3. Suppose this point is 2 3. ठीक है, आपको क्या फ्रेम करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x-axis. x-axis के पैरेलल चाहिए बट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. क्या y इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू ये वाली रहेगी, x की जो मर्जी हो जाए, इसके पैरेलल है. ठीक है, पॉइंट आपको क्या गिवन है? ये वाला पॉइंट है 3. ठीक है, आपने इक्वेशन बनानी है पैरेलल टू x-axis, लेकिन इसमें से पास होनी चाहिए वो लाइन. अगर इसमें से पास होनी है वो लाइन तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली वैल्यू फिक्स रहेगी. कितनी है वो? y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, ये हाइट है ना. क्लियर? तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप? y is equal to 3. It will be a line parallel to x-axis passing through the point 2 3. Equation of lines. First one is point slope form. इसका क्या मतलब है? एक आपको पॉइंट गिवन होगा और साथ में स्लोप गिवन होगा. ठीक है, if there is a point P with the coordinate x0, y0 and slope of line is m, then what will be there? m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसकी मैं थोड़ी सी डेरिवेशन आपको बता देती हूँ, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में इट इज नॉट पॉसिबल. ये एंगल थीटा है, ठीक है, स्लोप आपके पास कितना हो गया? टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज m. इट इज गिवन. इसके ऊपर कोई पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x0, y0. दिस इज द पॉइंट p. हमने अपनी मर्जी से कोई और पॉइंट लेना, जनरल पॉइंट यहाँ पे हमने q ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x y. क्लियर? अब इसका स्लोप क्या होगा? आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए. एक फिक्स्ड पॉइंट है जो ऑलरेडी गिवन है, दूसरा पॉइंट आपने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है x y. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? y माइनस y0 ओवर x माइनस x0. कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्लोप है. इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास फॉर्मूला हो गया m x माइनस x0 इज इक्वल टू y माइनस y. तो ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को क्या बोलना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म. इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. Here you are given one point and slope. So equation of line will be
y minus y naught is equal to m into x minus x naught. So y minus y naught is 3. Value of m here it is minus 2. Value of x is minus x as it is. x1 की value minus minus plus 4. तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y minus 3 is equal to minus 2x minus 8. x को भी इधर जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x plus y minus 8 plus 3 sorry plus 8 minus 3 it will be plus 5 equal to 0. Is it same? Now find the next question yourself. So here it is. D part. Do it yourself. Point is under root 2. 2 under root 2 and the slope is 2 by 3.